Well, the BJP has won after 27 years, and then the new CM was also made. That was Rekha Gupta, and just on the 19th, the oath taking ceremony happened, and even yesterday there was Ganga Aarti going on. There was the entire rituals going on, and also a process of the cleaning of Yamuna also started. The double engine Sarkar that went on power, came on power rather, started the very, Ganga Aarti. That started, the Ganga Aarti was going on for a long time, but the Yamuna cleaning that became a major issue of the election also this year, that also started. And there were many machines that was used. You talk about trash skimmers, you talk about dredgers, you talk about other machines. They were all used. And also in the winning speech as well, the Prime Minister himself said that Yamuna cleaning would be the most important aspect for the BJP. And also very importantly, and also the BJP needs to to stay on power, also to stay on this very seat. The cleaning of Yamuna becomes very important as well, and that became a major focus as well. And now the Lieutenant Governor has issued a four-pronged plan to clean the Yamuna, to make the Yamuna worth living. And yes, we're covering that the Yamuna became a major issue as well. But definitely, the work at the Yamuna has been started. The cleaning process has also been started, and yes, the government has also said that it's going to take 3 years for the government formation to start. Again, also we are joined by with someone who is a very special guest. His name is Pankaj Kumar. He's also, he works with Earth Warriors, and he also works with Yamuna, and also he has been a part of the initiative to clean Yamuna. He has been on ground. He has been on this very surface, on this very area. We are showing you, we are at the Vasudev Ghat, and we are on this boat, and we are trying to show you the effort that the government is taking to clean the Yamuna. And also I will also get a perspective from him that how much time is it going to take, what machines are they used, all the technicalities we'll be talking about. Firstly, welcome to NewsX. My very first question, we've spoken earlier also, my very first question to you would be, how much time do you think it's going to take for Yamuna to be cleaned? And do you think the cleaning of Yamuna, it's time that it should have been started, it's late? What do you see? How do you see? देखिए, यमुना अगर हम क्लीनिंग की बात करते कितना टाइम लगेगा, तो यमुना क्लीन का एक है कि हमारा जो वेस्ट वाटर है वो प्रॉपर ट्रीट होना चाहिए. अगर आप दिल्ली जल बोर्ड की बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड ने कहा था दिसंबर 2025 तक जो है दिल्ली की जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी है वो 964.5 MGD हो जाएगी. दिल्ली जल बोर्ड और नई सरकार दोनों का है कि इतना अगर हमारी ट्रीटमेंट कैपेसिटी हो जाती है तो यमुना का जो वेस्ट वाटर है वो प्रॉपर ट्रीट हो जाएगा और आपको यमुना के पोल्यूशन लेवल बहुत कम हो सकता है और उसके बाद आपको फ़र्क देखने के लिए मिलेगा. तो दिसंबर 2025 तक का टाइम तो कम से कम लगेगा ही. उनके साथ साथ जो आपने एक और कुछ सवाल था आपका. मेरा ये सवाल था कि ये जो क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है जब से बीजेपी पावर में है, आपके हिसाब से ये जो प्रोसेस है, क्लीनिंग प्रोसेस बहुत लेट हो गया है या पहले इम्प्लीमेंट होना चाहिए था? देखिए, ये प्रोसेस बहुत पहले से चल रहा है. अगर मैं बात करूं तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर जब यमुना एक्शन प्लान 3 आया, उनके अंडर में जो है बहुत सारे STPs बनाए गए और नमामि गंगे की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि दिसंबर 2022 के बाद यमुना में नो सिंगल ड्रॉप ऑफ डर्टी वाटर विल फ्लो. बट ऑलरेडी हम डेडलाइन मिस कर चुके हैं. वो जो था दिसंबर 2022 का, हम लोग 2025 में हैं और होपफुल है कि अभी बातें हो रही है और नए मशीन्स उतारे गए, सॉलिड वेस्ट उतारे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है वेस्ट वाटर भी बेहतर होगा. अब सर, हम आपसे ये भी जानने का कोशिश करें, काफ़ी मशीनें यूज्ड हो रही है. हम अभी वासुदेव घाट है. आई ऑल्सो रिक्वेस्ट माई कैमरा पर्सन हिमांशु टू शो द विजुअल्स ऑफ द वासुदेव घाट. हम लोग अभी वी आर एट वासुदेव घाट एंड ऑल्सो मैनी मशीन्स हैव बीन यूज्ड. यू टॉक अबाउट ट्रैश स्किमर्स, you talk about weed harvesters, and you talk about dredger as well. Now ahead is the very dredger also that we can see. Now if you can explain our viewers, we are trying to go a bit close also for our viewers to get a better visual. What is the work of a dredger? What does the dredger do, and how it helps in cleaning the the very river? देखिए, जितने भी मशीनें हैं वो सॉलिड वेस्ट के लिए होता है. जैसे वीट कटर है, जो पौधे होते हैं उनको काट के, जैसे जलकुंभी है तो उनको हटाएंगी,
या कुछ और है, जैसे ये आप जलकुंभी देख रहे हैं, तो इनको हटाने का काम जो है जो मशीन है वो करेगी। वो जो आप ट्रेजर देख रहे हैं, गाद जो होता है, सिल्ट जमा होता है, उनको निकालने के लिए, तो ये मशीनें हैं कि आपका जो है घाट की सफाई हो जाएगी, आपको नदी में कुछ भी सॉलिड तैरता हुआ नहीं दिखेगा। ये उनके लिए बहुत अच्छा है और अच्छा लगा कि ये इनिशिएटिव लिया कि सॉलिड वेस्ट तो कम से कम हटे, और जो भी मशीनें हैं उनका वही काम है कि सॉलिड वेस्ट हटाया जाए। जी। तो सर, अगर मैं आपसे ये भी जानने का कोशिश करूँ, जब पिछले गवर्नमेंट पावर में थी, हमने देखा था काफ़ी यमुना एक बहुत मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन भी हो गया था, क्योंकि छठ के समय भी जब हम कवर कर रहे थे, वो भी बहुत टॉक्सिक हो गया था लोगों के लिए नहाना, बहुत बीमारियां भी हो रही थी। अब नाउ जब द बीजेपी हैज़ कम इनटू पावर एंड नाउ दे आर टेकिंग द इनिशिएटिव टू क्लीन द यमुना विद ऑल द मशीन्स, यू थिंक हाउ मच डिफरेंस डू यू थिंक इट्स गोइंग टू मेक? देखिए, डिफरेंस तो होगा, क्योंकि मैं एक चीज़ है बातें कर रहे हैं, और बातें कर रहे तो काम तो होगा। और अभी क्या है कि चाहे आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मुझे लगता है अच्छी होगी। तो यहाँ पे लगता है, और उनके साथ साथ दो चीज़ें और है कि दिल्ली जल बोर्ड, नमामि गंगे, और जो हमारा डीडीए है, क्योंकि आप देखेंगे जो डीएसटीपीज बनाने की बात हुई थी दिल्ली में, तो डीडीए की तरफ से लैंड अलाउट नहीं हुए थे बहुत सारे, कुछ एसटीपीज डीएसटीपीज के लिए। तो अब लगता है कि एक सरकार है, तो ये जो मतलब ब्यूरोक्रेसी लेवल पे जो थोड़ी हर्डल्स थी वो कम होगी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने चाहिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, उनमें मुझे लगता है कि बेहतर सुधार होगी, और मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा आने वाले दिनों में। सर, अगर मैं आपसे ये भी पूछूं, नाउ यू बीन वर्किंग इन for Yamuna to better it for many years, you know, I'll also ask you, how many years have you been working for Yamuna? Now, are you hopeful that this time, you know, when you come after 3 years or maybe 5 years, you are going to see a betterment? When you come here after 3 years, you see there is a difference? और कितने साल से आप काम कर रहे हो for Yamuna, if you can tell us? मैं तो अभी 6-7 साल से यमुना के लिए काम कर रहा हूँ, और आने वाले 5 साल में देखिए बिल्कुल बेहतर होगी। उसका एक टेक्निकल मैं कारण बताना चाहूँगा। देखिए, पहले क्या था कि 2015 से पहले अपने यहाँ पॉलिसी थी, जो वेस्ट वाटर जो एसटीपी होती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, कि उसकी बीओडी 30 होगी और फीकल क्वालिफॉर्म 1000 एमपीएन। बट 2015 में सीपीसीबी ने नई पॉलिसी लाई कि अब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो सीवेज ट्रीट करेगी, उनकी ट्रीटेड वेस्ट वाटर की क्वालिटी जो है वो आपका बीओडी 10 होगा, और टीएसएस 10 और फीकल क्वालिफॉर्म 230 एमपीएन पर 100 ml होगा। तो जो नई गाइडलाइंस आई है वो बहुत बेहतर है पहले के मुकाबले, और उस गाइडलाइंस पे अगर वेस्ट वाटर ट्रीट होता है तो आपको पोल्यूशन बहुत हद तक कम देखने के लिए मिलेगा। जैसे अभी यहाँ पे बीओडी 46 mg पर लीटर और फीकल क्वालिफॉर्म 5,20,000 एमपीएन पर 100 ml है। तो अगर हम मानिए कि अगर सारा दिल्ली का वेस्ट वाटर ट्रीट हो जाता है, तो ये जो बीओडी 46 है वो आपको 10 से नीचे हो जाएगा, और फीकल क्वालिफॉर्म आपके 1000 के नीचे रहेगा। तो ये है कि जो नई पॉलिसी के हिसाब से जो एसटीपी जो अपग्रेड हो रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है यमुना पोल्यूशन को कम करने में। सर, मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, द एक्वेटिक लाइफ यहाँ, is it alive now, is it dead, and can these machines, if it is dead, can these machines that is working now can help it again relive all the aquatic animals that might be living? देखिए, ये अभी जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं है, शून्य है यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट आप देखिए जनवरी 2025 में, तो यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन है ही नहीं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इस पानी में ऑक्सीजन ही नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये मशीन्स ठीक है, पर इस मशीन से वाटर क्वालिटी इंप्रूव नहीं होने वाली। आप सॉलिड वेस्ट हटा देंगे, और अगर यहाँ पे लिविंग क्रिएचर होता तो उनको नुकसान होता इससे। मशीन्स आप इतने बड़े नहीं उतार सकते मतलब नदी में, क्योंकि बहुत हमें केयरफुल होना पड़ेगा इन मशीन्स को यूज़ करते हुए। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है अंदर, अगर फिशेस है या और कुछ भी है, तो उनको नुकसान तो होगा। उनके बाद ये शोर भी करती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा उनके लिए नुकसानदेह है। तो मशीन से ठीक है सॉलिड वेस्ट के लिए, बट वाटर क्वालिटी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए तो ये कोई हेल्पफुल नहीं है, नुकसान ही करेगी। Now I'll also ask you, according to you, what can be done better
what machines or what additional things can the government do to make this Yamuna better again now, because the government has also said that the STPs that were not properly working, they will also try to advance it, they will try to make it better. But according to you, since you've been working for Yamuna also for 6-7 years now, what can you suggest can be done better? देखिए, एक चीज़ ये है कि आप अगर वजीराबाद डैम पे जाएंगे तो हो ये रहा है कि वजीराबाद डैम पे जो यमुना का फ्लो है वहीं पे रोक लिया जाता है। उसके बाद जो है फ्रेश वाटर फ्लो बहुत कम है, टोटल फ्लो का 5% भी नहीं है। तो एक तो फर्स्ट काम करना होगा कि आपको फ्रेश वाटर फ्लो आप वजीराबाद के डाउन बढ़ाइए। तो उससे क्या होगा कि एक तो एसटीपी अगर ट्रीट कर रही है और वजीराबाद के अपर साइड से अगर फ्लो बढ़ती है, अगर मान लीजिए 20 से 25% भी फ्लो अगर इस तरफ आती है, तो उससे ये होगा कि पानी डाइल्यूट होगी और वाटर क्वालिटी बेहतर होगी। वाटर क्वालिटी बेहतर होगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन इसका बढ़ता है, बीओडी कम होता है। तो उससे ये होगा कि जो एक्विटिक लाइफ है वो फिर से यहाँ पे सर्वाइव करने लगेंगे, इनकी बायोडाइवर्सिटी बेहतर होगी। उनके साथ साथ हमें कंस्ट्रक्शन से बचना होगा। देखिए, नदी और नहर, आप एक चीज़ देखेंगे, नदी में भी पानी होती है, नहर में भी पानी होती है। नदी का भी पानी साफ होगा, नहर का भी पानी साफ होगा, बट फर्क होता है। नदी की अपनी बायोडाइवर्सिटी होती है, नहर में पानी तो होता है, उनके दोनों बगल आपने कंस्ट्रक्शन कर रखी है, तो वहाँ पे ना तो कोई एक्विटी लाइफ बेहतर सर्वाइव कर पाएगी, ना ही नदी के जो प्लांट्स है और नदी में जो रहने वाले जीव जंतु वो नहीं होंगे। तो नदी को हमें अगर नदी रहने देना चाहते, इसको नहर नहीं बनाना चाहते, तो हमें कंस्ट्रक्शन से बचना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम नेचुरली इनको बेहतर करें। फ्लो को आप कम स्टॉप करें, जो वजीराबाद डैम पे स्टॉप किया जा रहा है, तो फ्रेश वाटर फ्लो डालिए। और जो सरकार भी कह रही कि हम एसटीपी को इन्हांस करेंगे और ये होनी भी चाहिए, अगर वो भी इन्हांस होती है और बेहतर वाटर क्वालिटी ट्रीट होके आती है तो डाइल्यूट होगा, तो आपको यमुना की जो वाटर क्वालिटी है और यमुना का जो ये दृश्य है आपको बदला बदला दिखेगा और बेहतर लगेगा ये देखने में। Also, before I again come back to him, I'll again show you. You can see that this is the dredger that has been working, and it's been 4 to 5 days that this dredger has been working, and it is again, yes, definitely, it's a initiative to clean Yamuna. Even though yes, there needs to be more that needs to be done, but yes, it can be said that it's a step that has been taken, that should have been taken long back. Also, very far away, very very far away from us. I mean, it's very difficult to show you the viewers, but you can see there's another machine as well, and there are 2-3 machines other also that have been deployed. Pankaj sir, I'll also be getting to know this machine that you are seeing here, what is it doing? We can see, अगर हमारे viewers को भी थोड़ा समझा पाए, the entire mechanism, how it works, what is the work of it, ये क्या exactly कर रही है. Well, it's taking, I can see it's taking the mud or the silt out, it's putting it, what is it doing exactly? देखिए, आप देखेंगे वो सिल्ट निकाल के वहीं पे डाल रही है। सिल्ट निकाल के बाहर करना चाहिए, ये तो मुझे लग रहा है वेस्ट ऑफ टाइम और गवर्नमेंट फंड्स का कर रहे हैं। आप देखिए, वहाँ से सिल्ट निकाल रही है, फिर इसके बगल में डाल दी। इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है ये करने का। इसका व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी द प्रोसेस? देखिए, होता ये है कि ग्राउंड वाटर, जैसे नदी का पानी है, ग्राउंड में जाए, उसके लिए होता है कि जो सिल्ट होती है आप उनको निकालिए और बाहर करिए, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नदी के लिए नुकसानदेह हैं, प्लास्टिक्स जमे हुए हैं, तो उनको निकालिए, आप बाहर करिए। पर वहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ से निकाल के वहीं पे डाल रहे हैं। तो ठीक है, आपने इनिशिएटिव लिया, एंड कभी कभी ये होता है कि हम गलत से स्टार्ट तो करते बट वहीं से सही पे पहुँचते, बट ये अच्छा है कि कोशिश कर रहे हैं और ये मुझे लगता है बेटरमेंट की ओर जा रहा है और होपफुल हैं कि बेहतर होगा। तो बेसिकली इसका मेन प्रोसेस क्या है, अगर मैं थोड़े शॉर्ट में आपसे जानने की कोशिश करूँ, और इससे एग्जैक्टली क्या होगा अगर मैं ये सिल्ट निकाल के ये बाहर रखना चाहिए आपके हिसाब से, और इससे क्या होगा, इससे क्या बैलेंसिंग होगा या वाटर लेवल कुछ बैलेंस होगा, इससे क्या क्या एग्जैक्टली क्या बेटर हो सकता है? देखिए, होता ये है कि सिल्ट जो होता है कि बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें जो है जम जाती है नदी के अंदर, जिससे क्या होता है कि एक तो नदी ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं होती, और उनके साथ साथ क्या होता है कि नदी के जो एक्विटिक लाइफ है उनके लिए भी नुकसानदेह होता है। तो वो चीज़ें निकाल के बाहर करते हैं, या कुछ जल कुंभी वगैरह जम गई है, वो अंदर चला गया है कुछ, तो उनको निकाल के वो बाहर करते हैं। और सर, अगर हम आपसे ये भी जानने का कोशिश, वीड हार्वेस्टर्स जो है उनका क्या काम रहता है, उनका क्या प्रोसेस रहता है, और वो किस तरह से एक्वेटिक लाइफ को या यमुना को या जो रिवर को, नॉर्मल वाटर बॉडी को कैसे बेटर करती है? देखिए, वीड हार्वेस्टर का क्या होता है, जैसे
पौधे कुछ लग जाते हैं, जैसे आपने जलकुंभी देखी होगी जो हाइसिंथस कहते हैं, वाटर हाइसिंथस, तो उनमें क्या होता है कि वो जब लग जाती है किसी नदी में तो ऑक्सीजन जो सनलाइट नहीं जाती है अंदर, तो नदी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है तो वो मर जाती है, या जो क्या कहते हैं एक्वेटिक लाइफ्स है उनको भी नुकसान होता है। तो होता ये है कि जब हम वीड हार्वेस्टर चलाते हैं तो उनको वहाँ से काट के हटा देते हैं जिससे कि सनलाइट जाए और जो है एक्वेटिक लाइफ को नुकसान ना हो, तो उसलिए यूज़ किया था। पर यमुना में आप देखेंगे नहीं है, मतलब जलकुंभी या कोई भी पौधे नहीं है, तो वीड हार्वेस्टर लाए अच्छी बात है, पर यहाँ पे यूज नहीं है। जहाँ पे आपको प्लांट्स हैं उस तरीके के जिनको हटानी जरूरी है, जिनकी वजह से सनलाइट नहीं जा रही है, तो उनके लिए वहाँ पे वीड हार्वेस्टर्स वगैरह का यूज़ करना सही रहता है। और यहाँ एक और मशीनें यूज़ हो रही है, वो है ट्रैश स्किमर्स। तो आपके हिसाब से ये ट्रैश स्किमर्स का क्या काम है और वो क्या कैसे एक वाटर बॉडी को बेनिफिट करता है? ट्रैश स्किमर जैसे वहाँ पे आप अगर दिखा पाए, जैसे वो बोरे हैं वहाँ पे कचरा डला हुआ है, तो ट्रैश स्किमर्स क्या करती है, इस तरीके कचरे प्लास्टिक्स है वगैरह वो वहाँ से लिफ्ट कर लेती है और बाहर जाके वो ड्रॉप करती है। ट्रैश स्किमर्स का है कि जो सॉलिड वेस्ट जो तैर रहे हैं नदी में उनको हटाने का काम है, तो उनका ट्रैश स्किमर्स का फिर से एक बार आप पूरी नदी देख लीजिए, आपको नेग्लिजिबल सॉलिड वेस्ट बहते हुए दिखेगा। तो ये मशीन्स लाए अच्छी बात है, पर थोड़ा हमें साइंटिफिक होना पड़ेगा, क्या इसकी ज़रूरत थी दिल्ली में। आप कहीं भी देखिए आपको सॉलिड वेस्ट दिखेगा नहीं। जो दिल्ली के यमुना की प्रॉब्लम है वो वेस्ट वाटर की है, कि जो वेस्ट वाटर फ्लो हो रहा है हमें उस पर फोकस करना होगा, क्योंकि वही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ और प्रॉब्लम नहीं है यमुना की। ना ही यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लास्टिक बह रहा है, ना ही यहाँ पे आपको जलकुंभी दिखेगी, ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिल्ट है अंदर में पड़ा हुआ। सिल्ट आपको नाले में है यहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं है यमुना में। तो इन तीनों मशीन्स का और भी बेहतर यूज कर सकती है सरकार, बट again I will say that waste water is something that we need to focus on. The government has also said the STPs that has been not working properly, that will also be done better. आपके हिसाब से, even though it's in their roadmap also, it's in the 100 days roadmap, it's in their manifesto as well to better the STPs as well. Now, what is the use of the STPs according to you, and how can it help to reduce the the toxic level, the pollutants or the pollution level in Yamuna? देखिए एसटीपी मैं तीन चीज़ें समझाना चाहूँगा। एक होता है एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का काम क्या होता है, जो हमारे घर का हाउस होल्ड, हम अपने घर से जो लेटरिन बाथरूम का पानी होता है वो एसटीपी पे जाती है, वहाँ पे उनको अलग किया जाता है, उसमें से सॉलिड और लिक्विड को अलग किया जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करके फिर से रीयूज करने की पॉलिसी है, रीयूज नहीं कर पा रहे फिर से आप जाके नदी या नाले में आप छोड़ सकते हैं। ये एसटीपी का काम है, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर को ट्रीट करना। उसके बाद एक होता है सीईटीपी, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। इनका काम है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करना और ट्रीट करके रीयूज करना। रीयूज नहीं हो सकता तब जाके आप नाले में छोड़ सकते हैं। तो एसटीपी और सीईटीपी, एक तो हो गया हाउस होल्ड वेस्ट वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, इन दोनों को ट्रीट करने के लिए काम है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिल्ली में आप देखेंगे तो दिल्ली की अभी लगभग 800 MGD जो है वेस्ट वाटर जनरेशन है, तो लगभग 350 करोड़ के आसपास लीटर ये पानी है, तो बहुत ज़्यादा वेस्ट वाटर है। और अभी 700 MGD हमारी हाउस होल्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी है। तो अगर ये हम 800 MGD से जो 964 दिल्ली जल बोर्ड कह रही है, अगर हम यहाँ पे पहुँचते हैं 964, तो दिल्ली की जो टोटल वेस्ट वाटर जनरेशन कैपेसिटी है वो आराम से ट्रीट कर पाएगी और यमुना में आपको सुधार मिलेगा। अब मैं सर ये भी जानने का कोशिश करूँगा, आपने काफ़ी टर्म्स यूज़ किए, BGD, BOD, ये और भी काफ़ी फैक्टर्स है, शायद अमोनिया भी ज़्यादा है। क्या क्या लेवल्स है यमुना में, क्या क्या फैक्टर्स है जो बहुत ज़्यादा एक्सीडिंग है, जो आपने फीकल क्वालिटी भी कहा था, क्या क्या ऐसे नेम्स है या क्या क्या ऐसे टर्म्स है जो आपके हिसाब से नॉर्मल होने चाहिए पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, और कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी वाटर क्वालिटी को मेजर करने के लिए। एक तो आपका हो गया BOD। अगर आप जो अपने देश की पॉलिसी है, अगर किसी नदी में वाटर क्वालिटी में किसी नदी के अगर BOD 3 mg पर लीटर, BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका ये मतलब होता है कि किसी भी पानी में ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर अगर उसमें है तो उसको गलाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए पर लीटर में, तो ये BOD का मेजरमेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो BOD अगर आप NGT का गाइडलाइंस देखेंगे उनके हिसाब से ये है कि BOD जो है 3 mg पर लीटर किसी भी अच्छे स्वस्थ नदी में। और फीकल कॉलीफॉर्म होता है, फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन और एनिमल के मल में पाया जाता है।
और इसका लेवल किसी नदी के लिए ये डिसाइड किया गया है नहाने के पानी में 500 एमपीएन पर 100 ml या इससे कम होना चाहिए। ये एक जो है स्वस्थ नदी का डेफिनेशन है। बीओडी 3 mg पर लीटर और फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो आपका जो है 500 एमपीएन पर 100 ml से नीचे या उतना होना चाहिए। उनके साथ साथ डिजॉल्व ऑक्सीजन वो 5 mg पर लीटर या उससे ऊपर होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस घाट की बात करूं, हम लोग अभी ISBT कश्मीरी गेट के पास है। अगर जनवरी 2025 की आप रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो बीओडी है वो 46 mg पर लीटर है। और देखिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नदी को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। अटेंशन लेवल 1 होता है, तो यमुना की जो दिल्ली की सारे घाट वो अटेंशन लेवल 1 आता है क्योंकि इसकी बीओडी 30 से ऊपर है यहाँ पे जहाँ पे हम लोग हैं अभी। तो यहाँ पे अभी फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो अगर जिस घाट पे हम लोग अभी है वहाँ पे 5,20,000 एमपीएन पर 100 ml है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ है कि पूरा का पूरा ह्यूमन और एनिमल वेस्ट बहाया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों को समझना चाहिए नदी के पोल्यूशन के लिए। और मैं ये भी जानने का कोशिश करूँगा, अगर इंडिया में जितने सारे रिवर्स हैं आपके हिसाब से सबसे लीस्ट पोल्यूटेड रिवर कौन सा है और मोस्ट पोल्यूटेड रिवर कौन सा है? देखिए इंडिया में सबसे लीस्ट पोल्यूटेड रिवर की बात करें तो गंगा नदी सबसे लीस्ट पोल्यूटेड है। उसका कारण ये है कि अगर आप गंगा को अगर गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक भी अगर आप पोल्यूशन लेवल चेक करेंगे तो एक भी ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ पे बीओडी 10 mg पर लीटर से ऊपर जाती हो। 5-6 के आसपास हाईएस्ट जहाँ पे जाती है 5 से 6 होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड की बात करूं तो वो मीठी रिवर है, वहाँ पे बीओडी 200 mg लीटर से भी ज़्यादा पहुँच जाती है। और यमुना का स्टैंड कहाँ है इस टाइम पे? तो यमुना मोस्ट पोल्यूटेड में आएगा क्योंकि अगर आप बात करेंगे यमुना यहाँ से बह के जब असगरपुर जाती है तो वहाँ पे उसकी बीओडी अगर जनवरी की बात करें तो 64 mg पर लीटर और फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो 70 लाख एमपीएन से भी ज़्यादा है। तो मोस्ट पोल्यूटेड में भी ये आएगी जो यमुना की बात करें, क्योंकि बड़ी नदी में सबसे पोल्यूटेड कौन सी है तो वो यमुना, क्योंकि 1376 किलोमीटर में बहती है। और ये दिल्ली का जो आपका क्या कहते हैं वजीराबाद डैम से लेके असगरपुर वाला जो स्ट्रेच है 27-28 किलोमीटर का, ये मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेच आएगी पूरे देश में किसी भी नदी का। और सर मैं ये भी जानने का कोशिश करूँगा आपके हिसाब से BJP has said that they will take 3 years to make things better, to make the Yamuna better. According to you, since you are an expert and you know about Yamuna a lot, what do you think कितना time लग सकता है? Can 3 years is a good time for things to be better, or you think it needs more time? 3 years enough. 3 years में अगर वो काम करना चाहे तो यमुना का पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 3 साल भी मैंने बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइम ले लिया। और ईमानदारी से काम करें तो बिल्कुल आप अगर हम नेक्स्ट टाइम अगर 3 साल के बाद आते हैं तो आपको बेहतर देखने के लिए मिलेगा यमुना। और मेरा एक लास्ट सवाल यही रहेगा बिफोर वी रैप अप, आर यू होपफुल दैट दिस टाइम अराउंड, you know, when you come, because you've been working, we've been seeing your videos as well, now next time when you come here after 3 years or 2 years, whatever it is, you think, are you hopeful that this time you are going to see a new Yamuna? Even if it is not a new Yamuna, but are you hopeful that you can see things going to be better, or what are you hoping? मैं पूरा होपफुल हूँ कि यमुना की कंडीशन बेहतर होगी। अगर नहीं होगी तो मैं करवाऊँगा इनसे, और करना पड़ेगा इनको, क्योंकि अभी आपके पास एक्सक्यूज नहीं है। पीछे भी आपकी सरकार है, यहाँ भी आपकी सरकार है, DDA भी आपके अंदर है, सब कुछ है, तो करना तो पड़ेगा उनको, और दिल्ली की लोग करवाएंगे उनसे। मेरा एक और लास्ट सवाल रहेगा, आई एम नॉट गोइंग पॉलिटिकल इन दिस, व्हाट डू यू थिंक द प्रीवियस गवर्नमेंट, द आम आदमी पार्टी, couldn't do to make things better for Yamuna that should have done, and maybe this time the BJP coming in power can do that? सेंसिटिव, मुझे लगा सेंसिटिविटी नहीं थी। अब एक चीज़ यह है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आप भाग नहीं सकते, आप अक्यूज नहीं कर सकते कि यहाँ से गंदगी आ रही है, वहाँ से गंदगी आ रही है, दिल्ली में गंदा हो ही नहीं रहा है, जो कि वो गलत बोला जा रहा था। आप देखेंगे कि एक तो पीछे वाली सरकार आरोपित करती थी ज़्यादा हरियाणा से आ रहा है पोल्यूशन और यूपी से आ रहा, तो हरियाणा से एक नजफगढ़ ड्रेन आती है और यूपी से शाहदरा ड्रेन बह के आती है, दिल्ली यूपी से बह के
पर उनका 10% भी पोल्यूटेंट वहाँ से नहीं आ रहा था, ज़्यादातर दिल्ली की ही खुद की जनरेटेड पोल्यूटेंट थी। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही थी। इसी वजह से मुझे लगा कि वो फेल रही है। हमें अकाउंटेबल होना पड़ेगा अपने काम के प्रति, तभी जाके हम बेहतर कर पाएंगे। तो पिछली सरकार में मुझे अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखी। हमने भी बहुत सारे जगहों पे कंप्लेंट डाले, बहुत सारे चीज़ों के लिए। मैं कालंदी कुंज घाट पे क्लीनिंग ड्राइव हमारी हर संडे होती है, और हमें वहाँ से सॉलिड वेस्ट जो हम इकट्ठा करते थे उसको उठवाने के लिए हमें 6-6 महीने लग जाते थे कंप्लेंट डाल के, तब जाके एक बार गाड़ी आती थी उठा के ले जाती थी। तो ये चीज़ों तो थी कि कोऑर्डिनेशन बहुत कम था और सुनवाई नहीं होती थी। डबल इंजन में कोऑर्डिनेशन आपके हिसाब से बेटर हो सकता है? जी, मुझे लगता है कि होना चाहिए बेहतर। और देखिए, मैं पूरे देश की नदियों में के ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझे जो एटीट्यूड लगा, लोग ऐसा कहते हैं कि टायरेंट है, वो करेगी, बट मुझे दिल्ली के बाहर ज़्यादा सहूलियत मिली नदी के ऊपर काम करने में। दिल्ली में कोई भी जो है, या तो वहाँ की अथॉरिटीज़ कभी मुझसे कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाई या हमसे बातचीत नहीं करी। बट दूसरे जगह पे मैं चाहे दूसरे गुजरात चला जाऊँ या मैं क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, हम लोग वहाँ गए तो वहाँ की अथॉरिटी ने हमें कांटेक्ट किया कि क्या कर सकते हैं। बट दिल्ली की अथॉरिटी ने कभी नहीं कहा कि क्या क्या किया जा सकता है, कैसे हम काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी दिल्ली की जो अथॉरिटीज है वो बेहतर सुधरेगी, और वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि यमुना बेहतर हो, उनसे कम्युनिकेशन तो करेगी। क्योंकि देखिए, आप अगर साफ करना चाहते हैं, आप अगर कोई काम करना चाहते हैं और किसी के पास इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट हो या कोई और भी है, तो उनसे आप बात करिए, वो आपको हेल्प ही करेंगे। हम सभी का एक ही एम है कि यमुना सही हो, दिल्ली का पोल्यूशन कम हो, दिल्ली की एयर क्वालिटी बेहतर हो। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, और अथॉरिटी को चाहिए कि पब्लिक से आप सलाह मशवरा करें। ऐसा नहीं कि आप ख्याली पकाओ, मन में बनाए, तो और बेहतर हो पाएगी सिचुएशन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो वी हैड अ लॉन्ग, interesting and a very informative discussion with Pankaj Kumar, and he gave a perspective, he gave us a thought, he made us understand the work of the machines, the work of Yamuna that can be done better, and definitely he feels that he is hopeful also for the things to change, for better. But yes, we are also hoping the things to change for better, and definitely we see this as a fresh, a new start, that the cleaning has been done. The aartis are going on Tuesdays and Sundays at 6 p.m. So definitely a new start, we would say, a fresh start, we would say, that an initiative finally has been taken that should have been taken long ago. This is me, Brian Anthony Thomas, signing off with camera person Himanshu for NewsX Delhi. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.